السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاستی حکومت کی جانب سے اراکین کی نامزدگی کے بعد ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل، ایم ایل سی محمد سلیم کو چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کی گئی نامزدگیوں کو عدالت میں قانونی طور پر چیلنج کیے جانے کا خدشہ۔ عرب گلی دبیر پورہ کے ایک مکان میں آتش زدگی حادثہ، مکان کا سامان بشمول طلائی زیور اور نقد رقم جل کر خاکستر، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ دونوں شہروں کے مندروں میں بھکتوں کا ذہن منتشر کرتے ہوئے زیور اور نقد رقم ٹھگنے والا ملزم نارتھ زون پولیس کے ہاتھوں گرفتار، ڈی سی پی نارتھ زون کی میڈیا کانفرنس۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کی جا رہی تنقید مسترد، حکومت تمام طبقات کی بھلائی کے لیے پابند عہد، وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 3 سال سے زائد عرصہ اور تشکیل تلنگانہ کے بعد پہلی مرتبہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی اور اراکین نے متفقہ طور پر TRS MLC محمد سلیم کو چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ چیئرمین محمد سلیم کی قیادت میں وقف بورڈ کے دفتر واقع نامپلی حج ہاؤس میں بورڈ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ چارج سنبھالنے کے بعد محمد سلیم نے کہا کہ وہ بورڈ سے کسی قسم کی تنخواہ یا اجرت نہیں لیں گے، حتیٰ کہ پیٹرول کا خرچ بھی نہیں لیں گے، تاکہ وقف بورڈ کی صحیح معنی میں خدمت ہو سکے۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد پہلی مرتبہ کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے بالآخر ریاستی وقف بورڈ کی تشکیل عمل میں لائی، جس کے پہلے اجلاس میں MLC محمد سلیم کو چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ جمعرات کو حکومت نے ایک جیو جاری کرتے ہوئے ملک معتصم خان، ڈاکٹر نثار حسین، حیدر آقا، ایڈوکیٹ وحید احمد اور IPS تفسیر اقبال اور ڈاکٹر صوفیہ بیگم کو اراکین کی حیثیت سے مختلف زمروں میں نامزد کیا تھا، جبکہ قبل ازیں ہوئے انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے اراکین میں حیدرآبادی رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی، MLC محمد سلیم، مجلس رکن اسمبلی محمد معظم خان، رکن بار کونسل ZH جاوید، مرزا انور بیگ اور مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری شامل ہیں۔ جمعہ کو ہوئے اجلاس میں بیرسٹر اسدالدین اویسی اور IPS تفسیر اقبال کے علاوہ تمام اراکین نے شرکت کی اور بالاتفاق آرا محمد سلیم کو چیئرمین کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ صدرنشین منتخب ہونے کے بعد محمد سلیم نے پہلے آرڈر پر دستخط کیے اور حج ہاؤس کو رنگ و روغن کرنے کی ہدایت دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ بورڈ کی عین ذمہ داری اور ترجیح ہوگی، جبکہ بورڈ اراکین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بورڈ سے کوئی معاوضہ، اجرت یا تنخواہ حاصل نہیں کریں گے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی جانا ہوگا کہ 16 دسمبر 2013 کو وقف بورڈ کی مدت ختم ہوئی تھی اور آخری چیئرمین کی حیثیت سے مولانا خسرو پاشا نے خدمات انجام دی تھیں، اور تلنگانہ حکومت کے آنے کے بعد بھی وقف بورڈ کی تشکیل کے لیے ٹال مٹول کی پالیسی اپنائی جاتی رہی۔ بالآخر کورٹ کی سرزنش اور ہدایت کے بعد انتخابات اور نامزدگیاں عمل میں لائی گئیں۔ تاہم تلنگانہ حکومت کی جانب سے مختلف زمروں کے تحت کی گئی نامزدگیاں بھی تنقیدوں کی زد میں ہیں، جنہیں عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ملک معتصم خان، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور وہ گزشتہ انتخابات میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ٹکٹ پر انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں، انہیں ایمیننٹ مسلم کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ وحید احمد، جو ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہے، انہیں سنی اسکالر کے زمرے میں نامزد کیا گیا ہے، جو حکومت کے فیصلوں پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ویسے وقف بورڈ کے سلسلے میں ریاستی حکومت کے خلاف پہلے ہی سے 3 درخواستیں زیر التوا ہیں۔
और यूनानी मसली, क्योंकि MIM या TRS कोई अलग नहीं है, दोनों का अलायंस से जो है बोर्ड बना है ये, और सब मिलके जो है ना मंशा वफ़ के हिसाब से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है सेंट्रल एक्ट है, और यहाँ पर जो है ना इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 साल में वक्फ बोर्ड चेयरमैन रह चुका हूँ, पहले 2001 से 4 तक, और सबको मालूम है कि हमारी कारकर्दगी कैसी है, क्योंकि हम DA पानी भी नहीं पिए यहाँ से, और आज पहले जैसा था आज भी हम वही तरीके से काम करेंगे। कोई यहाँ से गाड़ी नहीं लेंगे, कोई पेट्रोल डीजल कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फर्ज है। और हमारे मेंबर्स भी जो आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे MIM की तरफ से भी पूरे ऑनेस्ट है। इससे पहले भी असदुद्दीन अवैसी साहब थे यहाँ पर हमारे साथ, अभी भी रहेंगे, और सब असदुद्दीन अवैसी साहब के मशवरे से और हमारे सब पूरे मेंबर्स के मशवरे से हम लोग जो है ना आगे बढ़ के जो है ना अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। और पूरे मेंबर्स ऐसे मेंबर्स है पूरे ऑनेस्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगा के CM साहब जो है ना, जो गवर्नमेंट के भी नॉमिनेटेड मेंबर है, वो लोगों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ये मेंबरों को तश्कील दिया गया है, क्योंकि ऐसी लेके आके किसी मेंबर को नहीं बिठाया यहाँ पर, क्योंकि सब गवर्नमेंट भी जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके पूरे आज जो शिया मेंबर है और हमारे अकबर निजामुद्दीन साहब है, हमारे जो भी मेंबर्स यहाँ पर है, मोहतशम साहब है और अनवर साहब है और हमारे जावेद साहब है, मौजम खान साहब है, ये सब ऑनेस्टली काम करने वाले लोग हैं। और वक्फ बोर्ड में मैं भी इसलिए इसको कबूल करा के, ये वक्फ बोर्ड जो है एक अल्लाह की अमानत है, इसमें आखिरत बना ले सकते हैं अपन अच्छे तरीके से काम करके। आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स यहाँ के वक्फ बोर्ड के हैं, वो प्रॉब्लम्स हम पूरे मेंबरों की राय से और असद साहब की राय से, हमारे CM साहब के मशवरे से हम लोग जो है ना पूरा इसको डेवलपमेंट करेंगे। और गवर्नमेंट भी जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पर भी है जो एक्वायर करे हुए है, उसको जो है ना पूरा प्रोटेक्शन देके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भी इंक्रोच करे हुए है, CM साहब खुद वादा करे हैं कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, हर चीज देंगे, इसको जुडिशियल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की मदद से, और CM साहब भी एक ऐसे है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ना जो चीज की जरूरत है वक्फ बोर्ड को, वो पूरी तरीके से CM साहब करने के लिए तैयार है। और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक ऑनेस्ट मेंबर है और डैनर है उन्होंने भी, और हमारे KTR साहब, ये लोग सब मिलके, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये सब मिलके हम लोग एक अच्छी टीम बना के जो है ना वक्फ बोर्ड को आज तक इंडिया में कोई डेवलप नहीं करा होगा, वैसा डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पर लेके आके CM साहब से जो मरायत लेना है बराबर तरीके से, और CM साहब भी करने के लिए तैयार, क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी आज जितने तबाह हो गए, वो इंशाल्लाह ताला जो इंक्रोच है उसको भी हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे मेंबरों की और हमारे गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, हमारे KCR साहब की सपोर्ट लेके। आज KCR साहब पूरे माइनॉरिटीज के इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोगों को सब मालूम है, क्योंकि अब यहाँ पर बोल नहीं सकते, आज पहली मीटिंग है, क्योंकि और ज्यादा बोलने से अच्छा नहीं, अपने को वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, पूरे मेंबरों की जिम्मेदारी है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करना है सबको, पूरे मेंबर्स को। और मेंबर्स भी हमारे पूरे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तरीके से काम करेंगे। आज का दिन बड़ी मुद्दतों के बाद आया है, चाहिए था, मगर जैसा आज आप हजरात के इल्म में भी है, GO की कॉपी आप लोगों के पास है, कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर तश्कील दिया गया, जिसका सहरा जाकिर हुसैन जावेद को जाता। उन्होंने रिट फाइल नहीं किए होते तो आज वक्फ बोर्ड नहीं बनता, अभी नहीं मालूम के कितने साल तक नहीं बनता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए बन गया। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी बॉडी है। वक्फ बोर्ड का काम यह है कि मुतवल्ली हजरात जो औकाफ के कस्टोडियन मैनेजर्स होते हैं, वो मंशा आकिफ के तहत काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं चेक करें। अगर ना करने की सूरत पे उनको उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें, और दूसरे वो अगर वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड सपोर्ट करे, क्योंकि मुतवल्ली खुद अपनी बिरादरी का मारा हुआ होता, क्योंकि हर भाई बहन ये चाहता है कि मेरे को भी औकाफ में हिस्सा होना। मुतवल्ली किराएदार से भिड़ता, किराएदार बुरा रहता, मुतवल्ली एनक्रोचर से बुरा रहता, क्योंकि राष्ट्र उससे
अगर मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मुतवल्ली किसकी मदद हो जाएंगे? आपका जो मसला रहा है वो और मीटिंग में मेरी बात वो अरब गली दबिलपुरे में वाक़े एक मकान में हुई अचानक आतिशज़दगी से तकरीबन 3 लाख रुपये से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक अजमल अली खान के मकान में अचानक आग भड़क उठी, जबकि हादसे के दौरान मकान में रखी हुई नकद रकम 1,30,000 रुपये के अलावा तिलाई जेवर और दीगर अशिया जल गईं। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड महकमे को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। इत्तला मिलते ही मजलिसी डिवीजन कॉर्पोरेटर मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुतालिका पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। नारजोन हुदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मनादिर में जहन मुंतशिर करते हुए दर्शन को आने वाले भक्तों को ठगने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से तिलाई जेवर और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। DCP नारजोन 20 सुम्मती IPS ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि 52 साला ईमानी राम बाबू साकिन नाचारम मुतवत्तिन मशरिकी गोदावरी को गिरफ्तार किया गया और साथ ही मसरूखा माल खरीदने वाले दिलसुख नगर के एक ज्वेलर अमित को भी हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मुलजिम हैदराबाद और साइबराबाद के तकरीबन 21 पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई वारदातों में मुलव्विस बताया गया है। ఒక నోటోరియస్ అటెన్షన్ డైవర్షన్ టెంపుల్ అఫెండర్ని నిన్న JBS దగ్గర కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇతని చరిత్ర ఆల్మోస్ట్ 2009 నుంచి ఉంది. ఇప్పటి వరకు 42 అఫెన్సులు చేస్తున్నాడు. ఇతను మారిందైతే ఏమీ లేదు, కానీ చాలా డిఫరెంట్గా తన పొట్టకుట్టి కోసం అంటే చెడు అలవాట్లకు బానిసైపోయి ఈ అఫెన్సెస్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఓన్లీ టెంపుల్స్లోనే అఫెన్సెస్ చేస్తాడు. టెంపుల్లో ఇంకా భక్తులు రాకముందే ఇతను ప్రవేశిస్తాడు. అయితే ఒంటి నిండా నగలేసుకొని ఉంటాడు. అతను చూడగానే పూజారి చాలా రిచ్ పార్టీ వచ్చిందని అనుకునే విధంగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత అతనికి దక్షిణగా ఒక 500-1000 రూపాయల నోట్ ఇట్లా పడేస్తాడు. దానితో పూజారి చాలా పెద్ద పార్టీ వచ్చిందని వెళ్ళి మీరు ఒకసారి కొబ్బరికాయ తీసుకొని రమ్మని చెప్తాడు. కొబ్బరికాయ తీసుకొని వచ్చే లోపల తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ అతని చిల్లర కోసం వెళ్ళే లోపల ఇతను అమ్మవారి మీద ఉన్న అమ్మవారు ఎవరైతే వాళ్ళు డైటీ దాని మీద ఉన్న గోల్డ్ తస్కరిస్తాడు. అండ్ అతను शामिलपेट में वाक़े बुर्रा तालाब में 2 तालिब इल्म तैराकी के दौरान गर्क़ाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के 13 तलबा पिकनिक की गर्ज से शामिलपेट पहुंचे थे और तैराकी के दौरान 13 तलबा के मंजुमला 2 तलबा गहराई में जाने की वजह से गर्क़ाब हो गए। तलबा के सरपरस्तों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद तैराकों ने 2 तलबा की नाशें बरामद की, जिनकी शिनाख्त 17 साला P साईराम साकिन चिरलापल्ली और 18 साला M विष्णुवर्धन की हैसियत से की गई है। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और नाशों को बादस पोस्टमार्टम वुरसा के हवाले किया गया। अमरीकी रियासत कैनसास में नफरत और हिकारत का एक और वाक़या पेश आया, जहां हैदराबाद के एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। महलूक नौजवान की श्रीनिवास कंचू भोतला की हैसियत से शिनाख्त की गई है। श्रीनिवास का एक साथी भी इस हमले में जख्मी हुआ है। जराए के मुताबिक हमलावर आदम बोर्निटोन ने हमला करते वक्त ये कहा था कि हमारे मुल्क से निकल जाओ। मुतवफ़ी श्रीनिवास और उसके साथी आलूक मादा सानी
गारमेंट नामी कंपनी में मुलाजिमत किया करते थे। श्रीनिवास के रिश्तेदार ने कहा कि अमेरिका के नए सदर हिकारत और नफरत के नाम पर हुए कत्ल के लिए किसी हद तक जिम्मेदार हैं। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मुतवफ़ी श्रीनिवास के अफराद खानदान से आज सुबह फोन पर बात करते हुए इजहार ताज़ियत किया। उनके अफराद खानदान ने कहा कि श्रीनिवास की नाश को हैदराबाद जल्द लाने के सिलसिले में कोशिशें की जा रही हैं और वजीर खारजा ने भी इस सिलसिले में ताउन का तयख्खुन दिया है। कांग्रेस के सीनियर कायद शशिधर रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तिरुपति और महबूबाबाद के मनादिर में सोने के जेवरात भेंट करने को गैर कानूनी तरीक़ेकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस ताल्लुक से कानूनी मशवरे हासिल कर रही है। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी अदालत से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि कॉमन गुड्स एक्ट के तहत इस तरह के इक़दामात नहीं किए जा सकते। कांग्रेस सीनियर कायद शशिधर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तिरुपति की और महबूबाबाद की मनादिर में सोने के जेवरात देने को एक गैर कानूनी तरीक़ेकार बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी इस ताल्लुक से कानूनी मशवरे हासिल कर रही है। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर वो अदालत से रुजू होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये कह रही है कि तिरुपति मंदिर में जो जेवरात दिए गए वो कोयम्बतूर में बनाए गए, जो गैर कानूनी तरीके से कॉमन गुड्स एक्ट 17 के तहत एक गैर कानूनी अमल है और इस तरह के इक़दामात करने का हुकूमत को कोई हक हासिल नहीं है। కొత్త దేవాలయాలు అదే విధంగా కళ్యాణ మండపాలు అది కూడా చెన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేటువంటి సమయంలో తీసుకొచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ కనుక చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఆభరణాలు సమర్పించడం అంటే మొన్న ఈ వివరాలన్నీ బయటికి రాలేదు, కామన్ గుడ్ ఫండ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటిది ప్రభుత్వ నిధులు అనేటువంటిది మాత్రమే వచ్చింది కనుక మొన్ననే నిన్న పత్రికల్లో వివరాలు వచ్చాయి। ఇదంతా కూడా కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఇంతే కాదు, భద్రకాళి దేవాలయానికి సమర్పించినటువంటి కానుక కానీ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి దుర్గా టెంపుల్కు కనకదుర్గా టెంపుల్కు సమర్పించదలుచుకున్నటువంటి కానుకలు కానీ ఇవన్నీ కూడా कोयम्बतूर में कोई ज्वेलर है, तिरुपति वाले खुद उनसे बनवाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसा इनको दे दिए। अब तिरुपति वाले क्या प्रोसीजर फॉलो करते वो बात अलग है, मगर ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सेक्शन 70 के हिसाब से जिस तरह से ये दिया गया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एडवोकेट से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जरूर इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नहीं, हर जहां भी कॉमन गुड फंड ऐसे चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। कहीं भी इसका मकसद एक्ट में बहुत साफ है, पुराने मंदिरों को दुरुस्त रिपेयर करने में और बहुत पुराने हैं तो उसको रेस्टोर करने में, छोटे छोटे मंदिरों में जहां बिल्कुल इनकम नहीं होती है उनके लिए रोज पूजा के लिए जो इस्तेमाल होता है उन चीजों को सब देने के लिए। और बीच में एक अमेंडमेंट आया था 1990 में, चन्ना रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, कि नए मंदिरों के लिए और ऐसे जगहों पर जहां पर वीकर सेक्शन लोग रहते हैं ऐसे जगहों पर कम कंट्रीब्यूशन से बनाने की भी बात उसमें रखी गई थी। इन सब चीजों को छोड़कर, क्योंकि मंदिर बनाने की ख्वाहिश हर एक की रहती है, वीकर सेक्शन वाले नहीं बना सकते, तो कॉमन गुड फंड से इस्तेमाल करने के लिए गुंजाइश रखी गई थी। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उसमें गुंजाइश थी, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा उस वक्त। साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस कायद पी लक्ष्मैया ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्हें इस बात का मशवरा दिया है कि वो अवामी इक़दामात करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें और इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अवाम टीआरएस हुकूमत को जबरदस्त सबक सिखाएगी। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेस कायद
पुनला लक्ष्मैया ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और उन्हें मशवरा दिया कि वो अवामी इक़दामात करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और इंतखाबात से क़बल टीआरएस ने अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादे किए थे उसको पूरा करे। पुनला लक्ष्मैया ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर टीआरएस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं करेगी तो अवाम साल 2019 में हुकूमत और टीआरएस को सबक सिखाएगी। ఒకవైపు పర్వదినమైతే పరిపాలన వల్ల ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్నారు, ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇది రాజకీయ కోణంలో ప్రతిపక్షంగా చెప్తున్న మాట మాత్రం కాదు, వాస్తవ పరిస్థితికి అద్దం పడుతుంది. అత్యంత పాశవిక పాలన ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నదనడానికి అనేక ఉదాహరణలు. విపరీతమైన నిర్బంధం ఉంది. ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం, పాలకులు ఇచ్చిన హామీల కోసం ఉద్యమాలు, పోరాటాలు చేసే పరిస్థితులు తీసుకొచ్చింది తెలంగాణ మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం. దురదృష్టం, దౌర్భాగ్యం. తెలంగాణ సాధించిన లక్ష్యాన్ని కేసీఆర్ పూర్తిగా నీరుగార్చారు. ఒకవైపు ఉద్యోగాల కోసం యువకులు, నిరుద్యోగులు, అప్పుల బాధలతో అన్నదాతలు, రైతులు, ఉపాధి లేక కూలీలు నరకం అనుభవిస్తున్నారు. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से वीआरओज ने मुलाकात की और वजीर आला ने उनके साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, वजीर IT KT रामाराव और वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा वजीर सयाहत चंदूलाल वो दीगर में मौजूद थे। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने शिवरात्रि के मौके पर महबूबाबाद के वीरभद्र स्वामी मंदिर में करोड़ों रुपयों के जेवरात भेंट किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला के श्रीहरि, रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा टीआरएस अपने पार्लिमान, अरकान असेंबली और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बाद में वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात हजम नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वह हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और तनकीदें किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से शहर के 2 अहम दवाखानों नीलोफर और गांधी हॉस्पिटल के हालात अबतर हो चुके हैं, जिसकी वजह से नीलोफर में 5 खवातीन की मौत वाक़ हो चुकी है, लेकिन अभी तक हुकूमत खातियों को सजा देने में नाकाम है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से शहर के 2 अहम दवाखानों नीलोफर और गांधी हॉस्पिटल की हालत अबतर हो चुकी है। नीलोफर में चंद रोज कबल 5 खवातीन की मौत वाक़ई हुई, लेकिन ताहाल हुकूमत खातियों को सजा देने में नाकाम है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने तक जिस दिन ख़वातीन की मौत वाक़ई हुई है उस दिन बरसर खिदमत डॉक्टर्स और दीगर अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, उनका तबादला किया जाए। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात सामने आएंगी, लेकिन हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ न कुछ फैसला लेना चाहिए था। మన రాష్ట్రంలో మొన్న మధ్యనే నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో బాలింతలుగా అక్కడ సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత రక్తస్రావం ఎక్కువయ్యి దాదాపు 5 మంది గర్భిణీ స్త్రీలు 9 రోజుల్లోనే 5 మంది చనిపోవటం, ఆ సందర్భంగా నీలోఫర్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపు నుంచి మేమంతా వెళ్ళి ఆందోళన చేయటం, దాని మీద ఒక కమిటీ వేశారు. అక్కడున్న సూపరింటెండెంట్ని, ఆర్ఎంఓని అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి హైదరాబాద్ కలెక్టరు ఆయన రిపోర్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. పేపర్లో వచ్చింది.
అది ఇంకా హైదరాబాద్ కలెక్టర్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయలేదు, చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంకొక పెద్ద హాస్పిటల్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ లాంటిది ఇంకా చాలా దేశం మన రాష్ట్రం మొత్తంలోనే పెద్ద హాస్పిటల్గా ఉన్న గాంధీ హాస్పిటల్లో अपने शौहर को फांसी पर लटकते हुए देखने के बाद बीवी भी बेहोश हो गई और दवाखाना मुंतकिल करने पर उसे मुर्दा करार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वाहद नगर ओल्ड मलकपेट में शेख अब्दुल रहीम ने अपने आप को फांसी लेते हुए ख़त्म कर लिया और जब उनकी अहलिया नसीम सुल्ताना ने अपने बच्चों के हमरा ये मंजर देखा तो वो बेहोश हो गई और इस दार फानी से कूच कर गईं। शेख अब्दुल रहीम जो एक अरसे तक सऊदी अरब में मुकीम थे, पिछले माह ही हैदराबाद मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हुए थे, ताहम उन्होंने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और इस सदमे से उनकी बीवी भी इंतकाल कर गई। मस्कुरा जोड़े को 3 लड़के हैं। तालाब कट्टे में वाक़ मस्जिद में नमाज जनाजा के बाद दायरा मीर मोमिन में तदफीन अमल में लाई गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती हुकूमत की जानिब से अराकीन की नामजदगी के बाद रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील MLC मोहम्मद सलीम को चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से की गई नामजदगियों को अदालत में कानूनी तौर पर चैलेंज किए जाने का खदशा। अरब गली दबीरपुरा के एक मकान में आतिशबाजी हादसा, मकान का सामान बशमूल तिलाई जेवर और नकद रकम जलकर खाकिस्तर, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। दोनों शहरों के मंदिरों में भक्तों का जहन मुंतशिर करते हुए जेवर और नकद रकम ठगने वाला मुलजिम नॉर्थ जोन पुलिस के हाथों गिरफ्तार। DCP नॉर्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों की जानिब से की जा रही तनकीद मुस्तरिद, हुकूमत तमाम तबकात की भलाई के लिए पाबंद अहद, वजीर आला तेलंगाना KCR का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।